What is the ideal oral care routine for any adult? हम लोग अपनी जो ओरल कैविटी है वी डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स 1 2 3 4। हम ब्रशिंग पे तो बहुत फोकस देते हैं बट वी निग्लेक्ट द हीरो दैट इज टंग। A lot of people take care of their oral care a lot, but still they have bad mouth smell, you know. बदबू जो आती है मुंह से दैट्स बेसिकली बिकॉज यू नॉट क्लीनिंग योर टंग प्रॉपर। So, why is oral care so important during pregnancy? जो आपके बैक्टीरिया हैं जो आपके गम्स में है दैट enters your bloodstream and travel to your uterus. Which toothpaste should we start with? What would you suggest, like manual brushing over electrical brushing? Charcoal toothpaste is best for whitening. Myth. Scaling makes your teeth healthy. It's a fact. Most overrated dental product? Charcoal toothpaste. Most underrated dental tip? The best mouthwash is गुनगुना पानी चुटकी भर नमक. Welcome to Happy Cuddle Talk. Today, we are joined by Dr. Nidha Madan. She's a root canal specialist and a smile designer with 13 plus years of experience. We are here to clear your dental myths and bring smile at your home at every stage. Welcome, Dr. Nidha. Thank you so much, Priyanka and Anisha, for having me here. I'm excited to share oral practical tips with the community that caters pregos and new moms that neglect oral care the most. Thank you so much. Thank you so much for being with us here today. So my first question to you, Dr. Nidha, is that what is the ideal oral care routine for any adult? Okay, so actually the rule which we follow and we suggest is 2 into 2. Okay. That means brush twice daily and for 2 minutes. For that, हम लोग अपनी जो oral cavity है we divide into 4 parts 1 2 3 4. So 30 seconds, 30 seconds, 30 seconds and 30 seconds. That's it. आपको सिर्फ 2 मिनट देने हैं और उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. The next is हम ब्रशिंग पे तो बहुत फोकस देते हैं बट वी निग्लेक्ट द हीरो दैट इज टंग जिसपे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और फूड डेब्रिस एक्यूमुलेट होते हैं. सो क्लीनिंग योर टंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. एंड थर्ड इज फ्लॉसिंग. इंडिया में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है फ्लॉसिंग बट दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड. फ्लॉसिंग इसलिए बिकॉज हमारे जो ब्रशिंग से हैं आगे के सरफेस ऊपर का सरफेस तो टीथ का क्लीन हो जाता है बट जो दांतों के बीच का एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा आपका खाना फंसता है जहाँ सबसे ज़्यादा आपको कैविटीज़ होती हैं अराउंड 54% कैविटीज़ दांतों के बीच में होती हैं. True. दैट एरिया इज़ नॉट क्लीन बाय ब्रश. सो फॉर दैट यू नीड अ फ्लॉस. सो डेंटल फ्लॉसिंग. सो ब्रशिंग ट्वाइस फॉर 2 minutes, flossing and cleaning your tongue. So that is the ideal oral care routine which we should follow. Okay, so during your, like whenever people visit you, so what are the common mistakes you have heard people do in their oral routine? Brushing too hard. दांत है सिर्फ नॉर्मल आप प्रेशर लगाइए ज़्यादा घिसने से कुछ एक्स्ट्रा क्लीन नहीं होंगे. सो ब्रशिंग टू हार्ड इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक. नॉट क्लीनिंग टंग, नॉट फ्लॉसिंग एंड नॉट चेंजिंग योर टूथब्रश. हर 3 महीने में आपका टूथब्रश चेंज होना चाहिए और वेन एवर यू फॉल सिक एनीथिंग विच कम्स पहले उसके हिसाब से या तो आपका 3 months में चेंज करिए या कभी भी आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो और व्हेनेवर यू फॉल सिक उसके बाद आप अपना टूथब्रश चेंज करेंगे. सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल डू. Okay. So, Dr. Nidha, a lot of people take care of their oral care a lot, but still they have bad mouth smell, you know. So, what is the main reason behind it? एक्चुअली अभी भी ये मिथ है कि माउथ स्मेल जो है इज जस्ट रिलेटेड टू योर टीथ. Right. सी द biggest culprit is your tongue for your bad breath. Consider your tongue as a carpet. जैसे घर का carpet accommodates all your dust and everything, your tongue accommodates all your bacteria and food debris. And bacteria loves to produce sulfur compounds which smell like rotten eggs. So जो बदबू जो आती है मुंह से that's basically because you're not cleaning your tongue properly. हम आगे आगे का क्लीन कर लेते हैं कि बैक साइड ऑफ द टंग इज नॉट क्लीन. सो द बिगेस्ट कल्प्रिट हियर इज टंग. सेकेंड, इफ यू ऑब्जर्व आप जब सुबह उठते हो तब आपकी स्मेल ज़्यादा होती है. वाई? बिकॉज योर माउथ वॉज ड्राई कम्प्लीटली पूरा रात भर. इधर यू वर माउथ ब्रीदिंग या मुंह खुला था या किसी भी तरह आपने पानी नहीं पिया एंड योर माउथ वॉज ड्राई. सो अदर हिडन कल्प्रिट इज योर ड्राई माउथ. जब भी हमारा मुंह ड्राई हो जाता है चाहे हम मुंह से ब्रीथ कर रहे हैं इसलिए या हम कई बार जो ड्रग्स होती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स और ये सब उनसे हमारी ड्राई माउथ की कंडीशन आ जाती है. सो दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड ब्रेथ बिकॉज जो आपका सलाइवा है आपकी जो थूक है
दैट इज़ अ नेचुरल क्लेंजर फॉर योर माउथ. वही आपके फूड डेब्रीज और बैक्टीरिया को क्लीन करता है. तो जब आपका माउथ ही ड्राई रहेगा, सो यूल स्मेल बैड. फॉर दैट अगर आपको प्रॉब्लम है, यू कैन यूज़ शुगर फ्री च्युइंगम्स आप यूज़ कर सकते हैं. दैट रिड्यूसेस अ लॉट ऑफ सलाइवा. और कीप योर सेल्फ हाइड्रेट. इसके अलावा इफ़ यू सी, कई बार ऐसे कई हिडन कंडीशन से इन्फेक्शंस बॉडी में होते हैं, बिकॉज हम कई बार मुंह का सब कहते हैं कि हमने सब देख लिया, फिर भी वी स्मेल बैड. सो इट्स टाइम टू लुक बियॉन्ड योर टीथ नाउ. सो कई बार जैसे यू हैव योर गट इशूज, यू हैव लाइक पोस्ट नेसल ड्रिप, साइनस प्रॉब्लम्स और टॉन्सिल स्टोन्स, तो तब भी यू विल स्मेल रियली बैड. तो ये सब चीज़ें आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड ब्रेथ. बाकी आपका खाना पीना, इफ़ यू ईट अनियन, इफ़ यू ईट गार्लिक, विल डेफिनेटली गोना स्मेल बैड. इनफैक्ट टी के बाद भी it's better you rinse your mouth well, because then also you're going to smell really bad. So your food is equally responsible. What you eat is what will smell like. So a quicker hack, is it workable? Like if we जो market में mouth wash वगैरह आते हैं, so should we use them या फिर it's not advisable? How? See, I won't recommend mouth washes like that कि mouth washes use करें, because half of the mouth washes जो हैं they contain high amount of alcohol in it. Okay. जो ज़्यादा ब्रांडिंग होती है, वो नेम इट, बट काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा माउथ वॉश कंटेंट होता है. सो इफ़ योर डेंटिस्ट इज रिकमेंडिंग सम माउथ वॉश, डू दैट, यूज़ इट. बट अगर ऐसे आप नॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं, सो योर सॉल्ट वाटर जो है, वार्म सॉल्ट वाटर, दैट इज़ द बेस्ट माउथ वॉश. और कभी भी जैसे आपने टी लिया, कुछ भी लिया, जस्ट रिंस योर माउथ आफ्टर इट. ओके. बट अनियन की जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, सो कैन यू सजेस्ट 1 or 2 माउथ वॉश जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? You can go for Clohex ADS, that is by Dr. Reddy's, which we recommend. Baki Listerine and all we do not. That is not recommended. And और जो mouth washes आते हैं, that is according to your needs. So during pregnancy, why do our gums bleed more? Actually, we should understand कि bleeding of gums is completely normal during pregnancy. Okay. And it is temporary. बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, आपके जो कई हार्मोन्स हैं लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है. सो एज अ रिजल्ट आपके गम्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, स्वॉलन होते हैं, रेड होते हैं. सो ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कम्प्लीटली नॉर्मल. दूसरा इज योर इम्यून सिस्टम इज टोटली फोकस्ड ऑन योर चाइल्ड डेवलपिंग किड. सो इम्यून सिस्टम आपका काफ़ी वीक हो चुका होता है. योर माउथ इम्यून सिस्टम इज क्वाइट वीक. तो उस टाइम आपका प्लाक डिपोजिशन, बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि आपकी ब्लीडिंग गम्स क्यों ज़्यादा होती हैं. बट दिस इज़ टेम्प्रेरी, इट वुड गो ऑन इट्स ओन. बट सिंस हमारे इम्यून सिस्टम वीक है, सो वी नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स. आप क्लीनिंग ढंग से रखिए, आप फ्लॉसिंग करिए अच्छे से, एंड डू विजिट अ डेंटिस्ट. और अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आप विजिट कर लेंगे, सो दैट वुड बी बेटर फॉर यू कि आपकी पूरा प्रेगनेंसी प्लान हो सकेगी. Okay. So why is oral care so important during pregnancy? Actually, bleeding gums is normal. Right. But if neglected, gingivitis जो हम कहते हैं pregnancy gingivitis, that is bleeding gums, it will turn into periodontitis. That is a severe stage. Okay. उसके बाद में जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो आपके गम्स में हैं, that enters your bloodstream and travel to your uterus and induce labor. So it is been researched and found कि जो लोग, जो pregnant women neglect oral care are 7 times more likely to give premature babies birth or low term birth weight. So that is a huge Yeah, that's a number big- because उनके 7 times more chances हैं एक premature baby को birth देने के, low birth weight के. So that is why we recommend कि आप प्रेगनेंसी में निगलेक्ट मत करिए, बिकॉज इट इज़ नॉट सेल्फ केयर, इट इज़ एक्चुअली योर प्रीनेटल केयर. जैसा वाइटमिन्स ले रहे हैं, सारे मिनरल्स ले रहे हैं, यू टेकिंग केयर, यू डूइंग ऑल योगा. सो जस्ट गिव अ विजिट टू डेंटिस्ट सो दैट ये सब आप, यू कैन हैव योर गुड प्रेगनेंसी एंड गिव अ हेल्दी. बट हम लोग को एक डर होता है कि अगर हम ये और करते हैं तो हम एनेस्थीसिया वगैरह का रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट कुड हार्म माय बेबी. सो इस चक्कर में काफ़ी वुमेन्स नहीं जाती हैं. सो कैन यू शेयर अ टिप ऑन दैट? सी, इट इज़ टोटली ओके टू विजिट अ डेंटिस्ट. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इट इज़ टोटली नॉर्मल एंड सेफ. ओके. द सेफेस्ट पीरियड जो हम बोलते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली सेकेंड ट्राइमेस्टर, दैट इज़ 14-20 वीक्स वाला जो है. बट स्टिल यू कैन विजिट एंड सी अ डेंटिस्ट एट any of the time of your pregnancy. But just a small request, inform your doctor about it.
अगर आपके शुरू के 3 महीने भी हैं जिसमें आप औरों को नहीं बताते, बट प्लीज डू नॉट हाइड फ्रॉम योर डेंटिस्ट. टेल देम दैट यू आर प्रेग्नेंट. विल प्लान योर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली. छोटा अपॉइंटमेंट टाइम रखेंगे हम लोग, ज़्यादा लंबी विजिट्स नहीं होंगी. प्लस हम जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे दैट वुड बी सेफ. एंड एक्सरेज आजकल इतने एडवांस हो गए हैं कि दैट डू नॉट इवन फोकस योर यूट्रस एट ऑल. इट जस्ट फोकसेस योर टीथ, और कोई भी रेडिएशन यूट्रस पे नहीं जाता है. बट स्टिल इवन वी आर इक्वली वरीड एज डॉक्टर्स कि इफ यू विजिटिंग अस, हम आपको लेड एप्रिन्स एंड थायराइड कॉलर्स जो हैं वो पहनाते हैं. सो अगर थोड़ा सा भी, चाहे 0.001% चांस भी होगा कि स्कैटर्ड रेडिएशन आपके यूट्रस तक जाएगा, सो कंप्लीटली सेफ देयर. So it is totally okay to see a dentist in any time of your pregnancy. I think that's very important because most of us actually scared to go of because this reason. we keep hearing from our parents and grandparents कि नहीं जाना, दर्द सहन करते रहो, but it is not okay to bear pain at all. Right. Your pregnancy should be safe and comfortable for you. Okay. Thank you for sharing this. Yeah. So coming to toddlers, what is the right age, that we should actually start the brushing routine or oral care for our toddlers? As soon as they are born. Really? Yes. Because initially, you need to keep their gums and tongue clean as well. Okay. And plus, आप एक हैबिट अगर लेटर ऑन इंट्रोड्यूस करोगे बच्चे के साथ तो वो नहीं लेगा. उन्हें स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए कि दिस इज़ माई नॉर्मल रूटीन. सो बच्चा जब हुआ है एंड यू फीडिंग योर किड, आप अपने बेड साइड टेबल पर एक मसलिन क्लॉथ या गॉज पीसेस जो होते हैं वो रखिए. जब भी बच्चा फीड ले उसके बाद में रैप दैट क्लॉथ और गॉज पीस अपने फिंगर पर एंड क्लीन देयर गम पैड्स अच्छे से आफ्टर एवरी फीड. है ना. सो दैट वुड डेवलप अ रूटीन फॉर देम. कीप देयर गम्स क्लीन, वुड प्रिवेंट बैड ब्रेथ बच्चों में भी. फिर लेटर ऑन जब वो बच्चे 6 months 7 months के अराउंड हो जाए, जब उनके दांत आने लग जाए, यू कैन स्टार्ट विद ऑल दिस. लाइक दिस इज फिंगर ब्रश. Okay. आप फिंगर ब्रशिंग स्टार्ट करिए. वही आपने फीड दिया, उसके बाद में जस्ट क्लीन देयर टीथ. इस टाइम आप कोई भी उनके साथ टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. Okay. फिर लेटर ऑन 1+ पे वी जम्प टू अ नॉर्मल टूथब्रश. जैसे नॉर्मल टूथब्रशेस होते हैं विच इज़ फॉर किड्स, अल्ट्रा सॉफ्ट. फिर हम वो अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रशेस उनके लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं 1+ पर. Okay. नाउ यू कैन इंट्रोड्यूस टूथपेस्ट टू देम. सो अब ये धीरे धीरे हमारा रूटीन है टूथब्रशिंग एंड स्टार्ट विद टंग क्लीनिंग एज वेल. नॉर्मली So which toothpaste should we start with? सी हम जैसे टूथपेस्ट जब डिसाइड करते हैं, वी डिवाइड योर चाइल्ड्स एज इनटू 3 parts. इट इज़ 0 to 2, 2 to 6 एंड 6+. Okay. तो जो 0 to 2 यानी कि 2 साल तक के बच्चे हैं वो थूकना नहीं जानते. दे डू नॉट नो हाउ टू स्पिट. सो इस टाइम हम उनका टूथपेस्ट जो भी सिलेक्ट करेंगे दैट वुड बी अ नो फ्लोराइड टूथपेस्ट, मतलब जिसमें फ्लोराइड बिल्कुल नहीं होगा. सो हम क्या करेंगे कि छोटा सा जो चावल का दाना होता है उतना टूथपेस्ट उनके टूथब्रश पर लगाएंगे. वी रिकमेंड यू कैन गो फॉर ईदर चीकू और मामाअर्थ, और यू कैन गो फॉर दिस कोलगेट का 0 to 2 years वाला. दे डू नॉट हैव एनी फ्लोराइड कंटेंट इन दैम क्योंकि बच्चा थूक नहीं रहा है. फिर उसके बाद में जब हम 2 to 6 वाली एज में जाते हैं तब वी नीड टू इंट्रोड्यूस फ्लोराइड टू दैम. फ्लोराइड इसलिए क्योंकि फ्लोराइड हैज़ एन एंटी कैविटी एक्शन. वो आपके दांतों को कैविटी से बचाता है. तो आपका बच्चा इस टाइम में थूकना सीख गया है, तब हम फ्लोराइड इंट्रोड्यूस करेंगे. बट दैट वुड बी इंट्रोड्यूस्ड छोटे अमाउंट में, दैट इज़ 500 ppm से कम. Okay. So for that we have like कीरोडेंट और चीरियो जेल, वो सब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं बच्चे के लिए. उसके बाद में जब हम बच्चा 6 year+ का हो जाए तब आप धीरे धीरे जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है वो 500 ppm से ज़्यादा हो जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट वी फॉलो. Okay, so honestly, Mira, my baby is like 18 months and I've been struggling to make her brush. So what should I do? That's the, like, I know it's important, but I don't know how to do it. Actually, that's a normal problem. वो खुद ब्रश नहीं करेंगे, मतलब आपको you should develop, make it a interesting ritual for them. Start as soon as possible. That is what I'm saying कि जितना जल्दी स्टार्ट करो, बिकॉज उन्हें लगना चाहिए दैट्स अ नॉर्मल रूटीन. जैसे उनका नहाना इज़ नॉर्मल रूटीन, उनका ब्रश करना इज़ अ नॉर्मल रूटीन. सो स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल.
दूसरा, मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देम. लेट देम चूज देयर ओन टूथब्रश. कुछ भी, जैसे जो भी उनका फेवरेट कैरेक्टर हो, बी इट पेपा पिग और एनीथिंग, उन्हें लेट देम पिक ऑन देयर ओन. शुरू में लेट देम डू ऑन देयर ओन. स्टार्टिंग में उन्हें दो, बिकॉज उनको थोड़ा सा बॉस वाली फीलिंग आती है ना, तो उन्हें अच्छा लगता है कि आई एम द बॉस, आई हैव दैट कंट्रोल ओवर माई सेल्फ. लेट देम डू. जब वो कर लें उसके बाद यू गिव अ फाइनल स्वाइप. बिकॉज वी रिकमेंड कि टिल 7 to 8 years तक आप बच्चे का मॉनिटर करेंगे, बिकॉज तब तक भी वो ढंग से क्लीन नहीं कर सकता. तो इनिशियली तो आप कराएंगे, लेटर ऑन यू विल मॉनिटर एटलीस्ट वंस, तो आप ही कराएंगे. दूसरी बात, प्ले अ नाइस म्यूजिक वाइल दे डूइंग इट. सम कोई अच्छी सी राइम लाइक ब्रश योर टीथ ट्वाइस एंड ट्वाइस, बहुत अच्छी राइम्स आर अवेलेबल, वो यूज़ करिए. एंड एक ही राइम यूज़ करिए सो दैट वो नो कि जब भी राइम प्ले होती है आई हैव टू ब्रश माई टीथ. और मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, लाइक सी आई कैन सी अ डायनासोर देयर, आई कैन सी ब्लूबेरी यू एट. वो निकालेंगे, चलो चलो चलो, यू हैड ग्रेप्स ना, वो अभी भी फंस गया आपके दांतों में, चलो चलो लेट्स टेक इट आउट. अरे उसने तो ब्रश कर भी लिया, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, चलो लेट्स डू इट. So make it interesting for them. I think वो सब चीज़ का एक रूटीन होता है, जैसे हमने स्लीप का बनाते हैं, वही ब्रशिंग का we should also do that. Exactly. कोई अच्छा सा चंकी सा उनका ब्रश हो, हैंडल हो. मेक श्योर उनका जो हेड है टूथ ब्रश का, दैट इज स्मॉल, अल्ट्रा सॉफ्ट एंड अ बिग हैंडल, जो वो अच्छे से होल्ड कर सके. Okay. लेट देम पिक देयर ओन टूथपेस्ट, जो भी आपको पता है कि उन्हें फ्लेवर पसंद है, बीट स्ट्रॉबेरी, बीट ब्लूबेरी और बीट एनी अदर बनाना फ्लेवर, वॉट एवर दे लाइक, उसके अकॉर्डिंग उनको फ्लेवर पिक करने दें. सो दिस शुड बी अ फनी हैबिट. इसको कहीं भी आप कॉम्प्लिकेटेड मत करिए सो दैट दे स्टार्ट हेटिंग इट. Right. Yeah, that's the problem. And if they're resisting so much, just a small swipe is better than doing nothing. Okay. चाहे आप फटाफट से स्वाइप कर दो, दैट इज स्टिल बेटर देन कि आप कुछ नहीं करो उससे. सो मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देम, बी इट अ पार्ट ऑफ रूटीन. जैसे उसका आप स्लीप रूटीन बना रहे हैं कि इस टाइम वो सोएगा, उसका ये रूटीन भी होना चाहिए कि इस टाइम वो ब्रश करेगा. Okay. Okay. So even after some of the parents maintaining all this, still some kids get cavities very early. So like even before they go school. So what could be the reason for that? Actually, it is about कि it is not bad parenting here. It is about something we do not know. आधे टाइम हम लोग कंसिडर करते हैं कि बच्चे का दांत ही तो है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, इट विल फाइनली शेड ऑफ, चला जाएगा, नया आ जाएगा. सो देयर वी आर लैकिंग सम नॉलेज. बच्चे का दांत इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट जितना एक अडल्ट का दांत है. बच्चे का दांत आप देखोगे खाने के काम आता है. अगर वो दांत ही नहीं होगा, बच्चा खाएगा ढंग से नहीं, नरिशमेंट उसे नहीं मिलेगा. दूसरा इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीच. बहुत बार हम बोलने के लिए हमारे काफ़ी लेटर्स हैं जब हमारी टंग हमारे टीथ पे टच करती है. सो अगर हमारे दांत नहीं होंगे, बच्चे की स्पीच ढंग से डेवलप नहीं होगी. थर्ड वो जो बच्चे का दांत है वो एक स्पेस मेंटेनर का काम करता है, जहाँ पर उसका परमानेंट दांत आता है. तो अगर वो दांत नहीं होगा तो जो उसका परमानेंट है वो अपनी सही जगह पर नहीं आएगा, वो आगे या पीछे आएगा. सो वो एक फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाती है. फोर्थ कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस इक्वली इम्पॉर्टेंट है. हमें लगता है बच्चा ही तो है, बट वही एक स्टेज है उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की. उसकी सेल्फ एस्टीम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. तो जब उसे पता है कि उसके दांत खराब हैं, बाकियों के अच्छे हैं, लोग उसे चिढ़ा रहे हैं, उसके बच्चे हिज फ्रेंड्स आर टीजिंग हिम, तो उसका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा जो उसकी एज है. एंड लास्टली इट इज़ लाइक अगर बच्चा कॉन्स्टेंट पेन में रहेगा सो कहीं भी फोकस नहीं कर पाएगा. सो बच्चों का टीथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज अडल्ट टीथ. सो एक हमारा वो फैक्टर रहता है. दूसरा हम सुनते हैं कि मुंह में बॉटल डालो, बॉटल डाल के बच्चे को सुला दो, जो नॉर्मल घर में होता है कि हमारा बेटा तो बॉटल लेके सो जाता है, एंड वी डू इट. तो जब वो बॉटल लेता है सो दैट मिल्क इज कंटिन्यूसली इन टच विद हिज टीथ. सो उस वजह से उसकी काफ़ी कैविटीज़ डेवलप हो जाती हैं, विच इज़ नोन एज नर्सिंग बॉटल केरीज, जिनका प्रॉपर नेम है. सो वो इस चक्कर में डेवलप हो जाती है. दैट इज़ वाई वी से कि जैसे ही आप फीड दो, clean their teeth with any cloth possible. So these are the factors जो प्ले करते हैं. प्लस हम थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें मंचिंग के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं. Right. तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन छोटे बच्चों में भी कैविटीज़ के लिए. तो वो चॉकलेट चिप्स जो हम बच्चों को डराते हैं, वो एक्चुअल में होता है क्या? It's not just chocolate and chips. Every food is responsible for cavities.
Okay, even if हाँ it's not sweet. दिस इज हाँ इवन इफ इट्स नॉट स्वीट यस नमकीन भी इक्वली उसको गंदा कर सकता है दांतों को सो इट्स जस्ट अ मिथ कि ओनली स्वीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैविटीज एनी फूड इनफैक्ट ड्राई फ्रूट्स अगर आप is ड्राई there? ब्लूबेरीज भी दे रहे हैं रेजन्स भी दे रहे हैं सो इट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल एंड इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू कॉज कैविटीज जितना आपने स्वीट्स कर रहे हैं Oh, didn't know. हाँ ड्राई ब्लूबेरी आपका जो ड्राई Right. ब्लूबेरी इट इज वेरी स्टिकी Okay. Yeah, so basically you have to clean after every Yes. meal as हाँ. well. नॉट आफ्टर एवरी मील डेवलप अ हैबिट कि बच्चा कुछ भी खाए उसके बाद उसे आप रिंस करा दो या पानी हाँ, पिला दो Yeah, right. सो दैट वुड वॉश अवे ऑल द फूड Okay, so is it okay, like if we, like kids sometimes don't have aligned teeth, so we can go for like what are the options for that to make it align or make it better, and even for the adults as well. एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चे की फर्स्ट विजिट जो है एक नॉर्मल डेंटिस्ट से शुड बी एट द एज ऑफ 1 जब आप एक बार बच्चे को विजिट कराइए उसके बाद आप रेगुलर विजिट्स दीजिए सो दैट बच्चा स्कैर्ड ना रहे एक एनवायरनमेंट को लेके प्लस हम जो कहते हैं ना तेरे दांत में कीड़ा लग जाएगा डॉक्टर सुई लगा देगा सो डू नॉट डू दैट डू नॉट क्रिएट अ स्कैरी इन्वायरमेंट कि बच्चा एक डेंटिस्ट को देखने से डरे प्लस एक ऑर्थोडोंटिस्ट जो कि ये वायर के लिए एक्सपर्ट होते हैं उनको विजिट करने की राइट एज इज 7 is the best age to see an orthodontist because उस टाइम क्या होता है कि वो आपके जाते ही आपके ब्रेसेस नहीं लगाएंगे सो उस चीज़ से आप फ्री रहिए कि जाते ही ब्रेसेस नहीं लगेंगे एक यंग एज पे कुछ नहीं होगा तो यू लीव गुड विद अ गुड न्यूज़ अगर कुछ होगा तो आपके एक वॉचफुल पीरियड होगा वॉचफुल वेटिंग इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग और अगर हमें लगेगा तो अगर हमें पता चलेगा कि आपके बच्चे की हैबिट्स हैं टंग थ्रस्टिंग की कि वो कंटिन्यूस उसकी टंग आगे पुश करती रहती है माउथ ब्रीदर है या अभी भी वो थम सकिंग की हैबिट है सो ये सारी हैबिट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं इस एज पर सो दैट उन्हें फ्यूचर में ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़े तो 7 इज़ द आइडियल एज टू सी एन ऑर्थोडोंटिस्ट सो दैट वो वहीं पर ही कोई हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस है तो वो आपको सजेस्ट कर सके देन यू कैन गो फॉर अ वॉचफुल पीरियड जिसके बाद में अराउंड 12 to 11, 12, 13 एज पर आप ब्रेसेस के लिए जा सकते हैं बीट कन्वेंशनल ब्रेसेस जो मेटल वाले आते हैं बीट सिरेमिक वाले जो वाइट कलर के होते हैं और बीट अलाइनर्स जो एक ट्रे की तरह होते हैं जो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं सो ऑल ऑप्शंस आर गुड फॉर किड्स पर लेट्स से कि आई एम 25 और मे बी अब मोर देन दैट और मेरे टीथ नहीं है जगह पे और मैं नहीं गई थी बचपन में सो वॉट पर मुझे ब्रेसेस नहीं लगवाना है बिकॉज आई डोंट वांट टू सी दोज वायर इन माई माउथ सो वॉट आर द ऑप्शंस डू आई हैव एज एन अडल्ट aligners are the best option plus age is not the criteria now even if you're 40 or 45 if your bone is healthy we can still go for orthodontic treatment so this is a myth कि छोटी एज में ही हमें ब्रेसेस लगवा लेने चाहिए सो एज इज स्टिल नॉट द क्राइटेरिया फॉर ओल्डर एज वी हैव ऑप्शंस लाइक इफ यू हैव दैट फील कि नहीं मुझे नहीं दिखाना आई एम टू ओल्ड फॉर इट यू हैव aligners they are not even visible in your mouth they work equally good like conventional braces और बिल्कुल एस्थेटिक लगते हैं कि नहीं पता चलता कि आपने कुछ करा दैट्स अ गुड ऑप्शन आई थिंक बिकॉज काफ़ी लोग Yeah. हेजिटेट करते हैं ऑलराइट Nidha, so nowadays we've heard a lot about electrical brush. So what would you suggest, like manual brushing over electrical brushing? See, actually both manual and electrical both are good. हम लोग फिर भी रिकमेंड करते हैं इफ यू नॉट समवन विद स्पेशल नीड्स या कोई स्पेशल नीड्स नहीं है आपकी सो गो फॉर अ मैनुअल वन बट अगर आपको नई ब्रशिंग टेक्निक नहीं पता है या यू अप्लाई टू मच प्रेशर सो यू कैन स्विच टू इलेक्ट्रिक वन बिकॉज इसमें आपको स्पेशल प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यू जस्ट कीप मूविंग अलॉन्ग विद इट वो अपने हिसाब से अपना प्रेशर लगाता रहता है अपनी मूवमेंट्स देता रहता है प्लस आजकल जो एडवांसेस हो गए इलेक्ट्रिकल टूथब्रश के उसमें और भी ज़्यादा कंट्रोल हो गया है कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो आप सेट कर सकते हो कि इफ़ यू हैव दैट प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम सेंसिटिविटी का इशू है जैसा भी इशू है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो एंड वो उस अकॉर्डिंग आपका यूज़ होगा बट स्टिल अगर आप बच्चों में पूछो तो आई सजेस्ट कि यूज़ स्विच टू इलेक्ट्रिक आफ्टर ओनली 4 to 5 years स्टार्ट विद अ मैनुअल वन एंड लेटर ऑन यू कैन मूव टू अ इलेक्ट्रिक वन और इलेक्ट्रिक भी अगर यूज़ कर रहे हो तो आपको ही सुपरवाइज करना है ठीक है सो इफ़ यूर समबडी who can apply normal pressure, gently brush your teeth, 2 minutes idle time, manual toothbrush is the best for you.
Okay. Before we step into the next segment, I actually have a question that what are some oral care tips for pregnant women who have a lot of morning sickness? सी मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है कि यू वॉमिट अलॉट, राइट? वॉमिटिंग क्रिएट्स अ एसिडिक एनवायरनमेंट, आपका पीएच काफ़ी कम हो जाता है. Okay. सो आई वुड रिकमेंड कि जब भी यू वॉमिट, डू नॉट ब्रश योर टीथ फॉर 30 मिनट्स उसके बाद, बिकॉज आपका इन्वायरमेंट ऑलरेडी ओरल इन्वायरमेंट इज एसिडिक. तो जैसे आप ब्रश करेंगे, सो यू कैन वेयर ऑफ योर इनामल. जस्ट आफ्टर यू वॉमिट, रिंस योर माउथ विद वाटर. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज आपका जो वॉमिटिंग दैट क्रिएट्स अ ड्राई इन्वायरमेंट. तो plenty of water, keep yourself hydrated. You can use a sugar free chewing gum as well. And plus लोगों के कहने में मत आइए कि ज़्यादा ब्रश मत करो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी और आफ्टर यू डिलीवर अ बेबी, बिकॉज बहुत सारे जापा मेट्स इवन से दैट कि ब्रश मत करिए, Right. उनसे काफ़ी आपके दांत खराब हो Yeah, जाएंगे. yeah. यू नीड टू कीप योर टीथ क्लीन. वो ब्रश करिए आराम से. यू कैन चेंज योर टाइमिंग्स. अगर आपको लग रहा है कि यू कैन ब्रश, थोड़ा सा आप टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली अपने चेंज कर लीजिए. बट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, rinse with warm salt water, or brush your teeth twice. I have a question to that. So, is it like, I'm not sure, but many people say कि it's important to brush after your meal, not before your meal. So, is it like हम लोग की जैसे हैबिट होती है सुबह उठते ही ब्रश करने की, but people say don't do it. You can do it post meal. That's more important. There are two school of thoughts. कई बार ये होता है कि हम ब्रेकफास्ट की, बिकॉज रात को हम ब्रश करके सोए थे, सो ब्रेकफास्ट के बाद कर लेते हैं. बट रात भर when your mouth was dry, your bacteria were having a nice party there. So you need to wash them off before you switch to your breakfast. So ideally, brush before your breakfast. Okay. I think we had a very serious discussion. Now we want you to bust some myths and fact for us. So we'll be asking some quick questions to you and you tell us if it's a myth or fact. All right. Okay. So charcoal toothpaste is best for whitening. Myth. Okay. Baby teeth don't need treatment since they fall out. Myth again. Brushing harder cleans better. Myth. Scaling makes your teeth healthy. It's a fact. Okay. Mouthwash can replace brushing. Never. It's an adjunct, but it can never replace your brushing. Okay. Rubbing mustard oil strengthens your teeth. See, actually, mustard oil नहीं, but we have oil pulling, जिस पे बहुत सारी researches हो रही हैं, and it's not about rubbing. You swish your mouth with virgin coconut oil और olive oil. आप मुंह में रखिए, थोड़ी देर उसको रख के just spit it out. So that is known as oil pulling. 3 to 5 minutes आप करेंगे. But again, studies, it is still under study. It is still under research. It is still an adjunct and it cannot replace your normal brushing. All right. All right. Thank you so much for sharing this. Okay, before going further, can you just share the dental human structure of our teeth? Okay. So, this is what your normal teeth look like, your normal oral cavity look like. These are teeth and these are gums. We focus just on our teeth and we neglect the gums. True. So you need to focus both on teeth and gums. And while we brush, we divide our mouth into 4 parts. 1, 2, 3, and 4. Right? So 30 seconds here, 30 seconds here, 30 here, and 30 here. But again, we forget here and inside part. So अंदर का भी is equally important as यहाँ का and यहाँ का. Because maximum cavities जो होती हैं, it's here. Yes. Here. यहाँ पर. Because यहाँ पर हमारे fissures and grooves होते हैं, जहाँ पर आपका food सबसे ज़्यादा accumulate हो जाता है. So maximum cavities हमारी यहाँ होती हैं. So you need to clean this area thoroughly. जिसके लिए ठीक है, we have advances now like pits and fissure sealants होते हैं, जिनसे आप ये area seal करवा सकते हैं. So advances हैं, but you need to clean this area thoroughly. The next is your gums. You need to visit your dentist every 6 to 8 months for a regular scaling and a checkup, so that जहाँ areas में, जिन areas में आपके normal toothbrush approach नहीं कर सकता, कि ये वाला जो part है, हम इसे gums के ऊपर वाला part कहते हैं, but your teeth are still gums के नीचे भी. Okay. So that is known as जो अपने gums के अंदर वाला teeth का part है. उसके लिए you need a professional cleaning, so that आप एक professional scaling, professional cleaning करवा सकें. तो मुझे लगता है कि 90% लोगों को आज पता चला कि ब्रशिंग brushing होती होती कैसे. कैसे. हम तो ऐसे ही चल रहे थे. अच्छा, ऑल्सो ना जब जैसे होता है ना, जैसे शादी है या एनी ओकेजन टू योर हाउस, तो वो आजकल वाइटनिंग स्ट्रिप्स आती हैं. सो
Is it recommended या फिर it's okay to use once in a while? सी एक्चुअली इफ आई से कि हर बीमारी में आप पैरासीटामोल ले लो सेम डोज, विल इट वर्क फॉर द किड, विल इट वर्क फॉर एवरीवन? नो, राइट? हर किसी की एक डोज अलग है, हर किसी का फीवर कितना उस पर डोज डिपेंड करेगा, क्या है क्या सब चीज़ें। सो एक वाइटनिंग स्ट्रिप सब पे कैसे काम आ सकती है? सो आई वोंट रिकमेंड यू ओवर द काउंटर जो चीज़ें हैं वो यूज़ करें, बिकॉज हम जो है इफ़ यू विजिट अ डेंटिस्ट फॉर अ प्रोफेशनल वाइटनिंग, वी मेक श्योर कि जो आपके गम्स हैं, जो आपके ये गम वाला पोर्शन है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है उन एसिड से विच इज़ यूज्ड फॉर वाइटनिंग. सो वी अप्लाई अ gingival protector barrier Okay. and then we bleach your teeth. But आप जब ये खुद यूज़ कर रहे हैं, एक वाइटनिंग स्ट्रिप लगा रहे हैं, so you're not protecting your gums at all. So it might burn it, it might harm it. Oh. Right? तो इसलिए प्रोफेशनल वाइटनिंग इज ऑलवेज बेटर. प्लस हमें पता है कि आपके वाइटनिंग जाएगी भी कि नहीं आपके दांत में, इफ इट It इज works. इवन इंडिकेटेड और नॉट फॉर योर टीथ, बिकॉज देयर आर मेनी इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वाइटनिंग के. सो आपके दांत के लिए बनी भी है कि नहीं, दैट अ डेंटिस्ट कैन टेल. अच्छा. सो क्या रहेगा. प्लस इसके बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो हम पोस्ट ब्लीचिंग फॉलो करते हैं, सेंसिटिविटी एंड एवरीथिंग, जिसका आपके पास कंट्रोल नहीं होगा इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन. सो प्रोफेशनल क्लीनिंग इज़ ऑलवेज बेटर. कई बार डेंटिस्ट ज़रूर आपको एट होम ब्लीचिंग के लिए आपके हिसाब से ही ट्रे बना कर देंगे. सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर माउथ, जितना वो बताएंगे, प्लस डोसेज प्रिस्क्राइब करेंगे कि ये आप यूज़ करिए. सो विजिट अ डेंटिस्ट इफ़ यू वांट टू गो फॉर होम ब्लीचिंग और ऑफिस ब्लीचिंग. All right. So I think let's come to a more personal and interesting part, which is, who is Dr. Nidha, and what has been the story that led you to choose, the dentistry field? Okay, so actually, I know majority of my life is defined by dentistry, but there is Dr. Nidha beyond this field I'm as well. sure. If not treating my patients, you'll see me reading a book or a coffee in one hand. I love to spend time with my family. I love to travel a lot. Oh. So Awesome. यही है. I don't ज़्यादा कुछ नहीं है. Plus, actually, I was passionate about this field because I had been to dentist a lot. मैं खुद dentist के पास बहुत गई हूँ when I was a kid. And then I realized कि एक tooth भी आपकी life में कितना major role play कर सकता है, because this one tooth was not in place for me. Okay. So how underconfident I was उससे पहले जब मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया था. Then I went for ortho treatment and then my smile changed. So how confident I became post that. So I realized कि एक दांत भी कितना ज़्यादा important हो सकता है किसी की लाइफ में. Plus it is, dentistry is not just a career for me. I have built a family with my patients. एक मेरे साथ वो नहीं है कि एक मैंने पेशेंट करा. I have built a rapport with them. I have built a family there which provides me relief और एक comfort मिलता है. I have realized this because अब अगर कई patients मेरे हैं who waited during my pregnancy, who waited after my post pregnancy period till I resumed clinic, जो अभी भी पूछते हैं कि अच्छा how is your son, how old is he now? So that is what keeps you going. Right. So that's the passion which leads me here again. That's Awesome. awesome. So on that note, let's have a quick rapid fire with you and get to know you a little better, Nidha. So what would be your choice? Floss or mouthwash? Floss. Most overrated dental product? Charcoal toothpaste. Most underrated dental tip? The best mouthwash is गुनगुना पानी, चुटकी भर नमक. Oh. Biggest dental myth? Whiter teeth means healthier teeth. One thing you wish every new parent knew? That kids' teeth are equally important as adult teeth. Most common lie patients tell you? That they brush twice. One bad dental habit you hate? Using your teeth as your tools. कि आप कुछ भी खोल रहे हो, यहाँ से खोल लिया. You're biting your nails with it. You're opening your bottles with it. No. Got it. Celebrity with the best smile? I guess it would be Deepika Padukone or Madhuri Dixit, and in males it will be Hrithik Roshan. Awesome. Have you ever laughed during a procedure? Yes, my patients sleep during root canal treatments. जो पहले बोलते थे कि root canal treatments are painful, they sleep during it. That's brilliant. If not a dentist, what would you be?
I would be a teacher. Though I was still into teaching field, I love to teach. I love to impart knowledge. I love to speak about it. So I would have been a teacher. Sweet. nice. Last thing you Googled related to teeth. That were the ingredients of a toothpaste. Awesome. So I think that was a very fun and good to know tips. So thank you for joining us and thank you for watching us. If you really like this episode, do share with people around and share the healthy tips around and subscribe our channel and like this video. Thank you so much.